Now next question is that we have to calculate the simple interest, and the value of the P is already specified in the question, and we have to just take the value from the user. तो यहाँ पर in this question हम यहाँ पर जो principal की value है, either you can write the word principal the full way, or you can store the value in the variable. That is not your choice. I've specified the value of principal is 100. It is specified in the question, and take the value of rate and time from the user. So rate and time के लिए I am just taking the value from the user. Input, enter rate of interest, next is time is also in the form of int, because the user will enter the time period for that. Here enter after that we just have to calculate it. You can store the value in variable also, and then you can calculate the result. Multiply by 100, and then you can display the result. अब एग्जीक्यूट चेक करते हैं. Just specifying the rate of मैम interest. वहाँ पे डिवाइड बाई 100 होगा ना. अच्छा सॉरी, थैंक यू, माय मिस्टेक. डिवाइड बाय 100 चेक करते हैं. 3 into तो simple interest will be this. Clear? Now note down this question also. We have to calculate the simple interest. Value of one principal is given to you, and we have to take only the rate and time from the user. Excuse me, ma'am. बोलो बेटा. Ma'am, if don't put this int function, तब भी तो ये execute हो जाएगा ना? अगर क्या? मैम अगर हम ये int function नहीं डालेंगे, तब भी तो ये चलेगा ना प्रोग्राम? नहीं चलेगा. वो चलेगा, पर वो आपका एरर शो करेगा. चेक करते हैं. यहाँ पर वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, इट विल कंबाइन द वैल्यू में. यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ इंट को, और यहाँ पर बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका इनपुट फंक्शन विल टेक द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में तो चीज़ें आपकी कंबाइन होंगी, और आपका सिर्फ वो क्योंकि मल्टीप्लाई भी यूज़ किया स्ट्रिंग के साथ, चेक कर लो, तो यहाँ पर वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा. इसीलिए दैट इज वाई, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द कैलकुलेशन पार्ट, and int function help us to convert the string value into numbers, because input function takes the value in the form of string. Yesterday we discussed this concept. So Yes, ma'am. Clear? Now if Yes, ma'am. Note down this code, we will move to another question. Next is हम इसका भी दूसरा तरीका है करने का. हाँ, there are so many ways. मैंने यहाँ पर बता दिया. If you don't want to store the value in variable, just do the calculation here also. दूसरा वे करते हैं. और भी वे हैं. If you know that thing, then you can also execute it. पर आंसर सेम आना चाहिए. I'm just copying and pasting the things. और यहाँ पर I'm not doing the calculation in the form of variable. I'm just displaying it here. और यहाँ पर प्लीज डोंट, व्हेन यू आर डूइंग द calculation in the print statement, please don't write the equality. You can't store the value in any variable. यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही करते हैं. Straight away they are doing the calculation in the print function and they are using the equal to symbol also. यहाँ पर आपका सिर्फ कैलकुलेशन आएगा, ये नहीं. चेक करते हैं, ये एरर शो करेगा. Let me make the previous code in the commented form.
वाला नहीं लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। चेक करें, यहाँ पर देखो इसने एरर शो किया, ब्रैकेट का है, रिमूव करते हैं। उसने यहाँ पर 3 2 वो उसने कहा इनवैलिड, बिकॉज हम इन द प्रिंट स्टेटमेंट वी कांट यूज द एक्सप्रेशन, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं इक्वालिटी की फॉर्म में, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? So this is the another way to write the same code. You can do the calculation in the print function also. It is not necessary that you have to store in the variable. Variable कब यूज करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन है that we have to wrap का मतलब क्या होता है, write a program. So normally instead of writing the word write a program, we are using the word wrap, W-A-P. Wrap means we have to write a code or a program. Clear? Now next is to take marks in the 3 subject. तो यहाँ पर we have to take the marks in 3 subject. So I am just using this same statement. Marks 1 में I am storing the value. Enter first subject marks. Second subject marks. Third. हमने कैलकुलेशन करनी है टोटल एंड परसेंटेज की। अब वेरिएबल का यूज चेक करते हैं। M2 प्लस M3 टोटल हुआ। परसेंटेज के लिए आई एम यूजिंग दिस थिंग, T डिवाइड बाय 300 इंटू 100। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा प्रिंट SP। तो अभी आप इतने ऊपर जितने भी मेथड थे उनको सबको यूज करके यू कैन राइट योर कोड इन अदर वे आल्सो। For the time being, I am just using the same numbers in all the subjects so that we will get the same percentage. ठीक है, यहाँ पर अब इसमें यूज क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज इन दिस क्वेश्चन आई हैव स्टोर द कैलकुलेशन इन द वेरिएबल्स, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन वेरिएबल्स में नहीं करती हूँ तो उसका डिफरेंस क्या आता है वो चेक करते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव करती हूँ। आई एम जस्ट स्टोरिंग द एंटायर रिजल्ट इन यहाँ पर, और फिर अगेन बिकॉज हेयर आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नॉट स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल। यहाँ पर तो था जिसमें टी आया, टी की वैल्यू को मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया, पर हेयर वी हैव टू डू द कैलकुलेशन अगेन, M1 प्लस M2 प्लस M3 अगेन, फिर इसको हम टोटल करेंगे, फिर डिवाइड बाय 300 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको बार बार वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अगर आप स्ट्रेट अवे यू कैन डू द थिंग्स। तो अब इसको हम चेक करते हैं, वी विल ऑब्वियसली वी विल गेट द सेम रिजल्ट, बट अब डिफरेंस आप चेक कर सकते हो, वेरिएबल में होता है देन वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशन, क्योंकि प्रीवियस जो वैल्यू थी उसमें वो रिजल्ट स्टोर हो गई। द सेम थिंग आई एम टेकिंग इट अगेन। क्लियर है? तो दिस इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द वेरिएबल। मैम बस 3 से डिवाइड करने पर भी तो आ जाएगा परसेंटेज। हाँ 3 से मैंने इसलिए किया क्योंकि नॉर्मली यू पीपल आर सेइंग नहीं मैम 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाई उसमें, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाता था, नो नीड टू यूज दैट थिंग ऑल्सो, हमारा तब भी रिजल्ट वी विल गेट द सेम वैल्यू। कि कंप्यूटर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
clear है? Then please note down this code. Let me stop the recording for you.